Assalamu alaikum student. This is your new science book Modern Basic Science 5 GABA publisher. First chapter is growth and reproduction in plant. Chapter number 1, page number 1. Plants are our green friends. They provide us oxygen to breathe, give us fruit and vegetables, and we also get medicine and other important products from them. Life cannot survive on the earth without plant. Next topic is reproduction in plants. Reproduction is the process by which plants make more copies of their own kind. In plant, reproduction take place by seed, spores or by vegetative propagation. Page number 2, structure of flower. Look at this structure of flower. A flower has 4 parts: petal, sepal, stamen and pistil. First part of flower, sepal. Sepal are green in color, leaf-like structure located at the base of the flower. They protect the developing bud. Next, petal are brightly colored part of the flower. They are brightly colored in order to attract insect for pollination. Stamen. Stamen are the third part of the flower from outside. A stamen has 2 parts, anther and filament. The anther carries pollen grain. 4. Pistil. Pistil is the innermost part of the flower. The pistil has 3 parts: stigma, style and ovary. Next chapter, page number 3, type of pollination. There are 2 types of pollination: sex pollination and cross pollination. This process is self pollination. Self pollination of pollen of the flower fall into the stigma of same flower. And next one, cross pollination. Cross pollination, the pollen of the flower fall onto the some other flower but of the same kind. Page number 5, topic is seed germination. The development of a new plant from a seed are called seed germination. जैसे कि आपको पिक्चर से नज़र आ रहा है कि सीड की जर्मिनेशन है, सीड की डेवलपमेंट है जो कि एक प्लांट तक जारी है, दैट इज़ कॉल्ड सीड जर्मिनेशन. वाटर, एयर एंड वार्मथ आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. A germination seed need water which dissolve the stored food so that it can be used to produce energy needed by germination cell. Next topic is dispersal of fruit and seed, page number 7. Plant cannot move from one place to another, but if all body plant grow near the mother plant, not all would survive because they would not get enough sunlight, food, water and space to grow. Hence, nature has arranged some agent to scatter these seed to far off places. These agents carried fruit and seed away from their parent plant. This process of scattering of fruit and seed away from the parent plant is called dispersal of the plant. किसी भी प्लांट के डिस्पर्सल का मतलब ये है कि अगर वो प्लांट उनके सीड हैं या स्टेम हैं वो उन्हीं के पेरेंट्स के पास ही ग्रो करें तो उन्हीं के साथ उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है. लेकिन जो नेचर के जो फैक्टर हैं जिसमें फास्ट विंड है, फास्ट रेन है, ये उन सीड को अपने साथ दूर लेके चले जाते हैं और इस तरीके से फ्रूट और सीड का डिस्पर्सल हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो अगर कोकोनट प्लांट है वो अगर एक जगह है तो फिर वो दूसरी जगह भी उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है. और ये सब चीज़ें जो हैं वो नेचर की वजह से अमल में आता है. न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट. Beside growing from seed, the other way in which new plant grow is from the body part of the old parent plants. सीड के अलावा भी अगर हम पौधों को प्लांट को ग्रो करना चाहें तो वो हम उनके पेरेंट प्लांट के बॉडी पार्ट से भी हम किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम कटिंग, रूट और लीव्स और ऑफ सर्टन प्लांट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट. इस तरीके से आपको दिखाया है कि कोई भी रूट है या स्टेम है या लीफ है उसकी कटिंग सेक्शन करके हम न्यू प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस में सीड के अलावा भी ये स्टेम कटिंग एक दूसरा मेथड है जिसके ज़रिए प्लांट को ग्रो किया जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक, न्यू प्लांट फ्रॉम ग्रो विथ रूट. Potato, sweet potato and ginger grow from underground part of the plant.
New plant grow from their leaves. Some plant also grow from special structure called bulb. For example, onion plants grow from the bulb of the parent plant. इसमें आप ये देखिए कि पोटैटो है और स्वीट पोटैटो है, जिंजर है, ये सब जो हैं अपने पेरेंट प्लांट से ही ग्रो करते हैं और ये अंडरग्राउंड इनकी ग्रोथ बढ़ रही होती है। न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर, दिस इज़ आवर न्यू टॉपिक। इसमें क्या है कि ये प्लांट जो है इनमें सीड नहीं होते और ये स्पोर के ज़रिए ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स सच एज फर्न, मशरूम्स एंड मॉसेस डू नॉट हैव फ्लावर्स, इनके फ्लावर्स नहीं होते। जब इनके फ्लावर्स नहीं होते तो इनके पोलन भी नहीं होते। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, और ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते। दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स, ईच स्पोर्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इफ़ इट गेट प्रॉपर वार्म मॉइस्चर एंड एयर, और जब इनको प्रॉपर एयर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा और सनलाइट प्रोवाइड होगा तो ये अपना न्यू प्लांट ग्रो ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल, पेज नंबर 10. If we know the condition that are suitable for the germination of seed or crop, we can grow better crop. Different plant grow into different climates and season. यहाँ पे ये है कि हम जानते हैं कि बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो अपने सीज़न के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं और मुख्तलिफ सीज़न और क्लाइमेट पे वो बेहतर नशोनुमा होती हैं। क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्राम दैट ग्रो इनटू विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स टू टाइप ऑफ क्रॉप्स होती हैं, एक रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। तो जो विंटर में क्रॉप्स डेवलप होती है उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल राइस, मेज, जवार एंड बाजरा ग्रो इन समर एंड आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। फ्रॉम जून टू अक्टूबर राइस एंड जूट ग्रो इन clay soil which hold plenty of water. On the other hand, wheat is grown in sandy and irrigate soil. Jawar and bajra are grown in sandy soil. यहाँ मतलब यह है कि मुख्तलिफ जो क्रॉप्स हैं, कोई सैंडी सॉइल में ग्रो कर रहा है, कोई क्ले वाली सॉइल में ग्रो कर रहा है, तो ये मुख्तलिफ इनके सॉइल्स हैं। कोकोनट ट्री जो होता है वो हम सी एरिया के करीब या वहाँ पे ये ग्रो कर रहा होता है। पेज नंबर 12 एक्सरसाइजेज है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स गिवन है आपको। यहाँ पे आप 5 सॉल्व कर सकते हैं और इनको कॉपी भी कीजिएगा। ट्रू एंड फॉल्स हैं। नंबर 1, द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ मैच्योर प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अगर ये राइट है तो उसको ट्रू कीजिएगा और ये फॉल्स है तो उसे फॉल्स कीजिएगा। पेज नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 5 करने हैं कॉपी में। Pollen grain are transferred from the anther to the stigma of the same flower in the process called, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन से प्रोसेस से pollen grain ट्रांसफ़र होते हैं, पॉलिनेशन। समर हार्वेस्टेड क्रॉप आर कॉल्ड, समर की जो क्रॉप्स होती है वो क्या कहलाती है। विंटर हार्वेस्टेड क्रॉप आर कॉल्ड, वो विंटर की क्या कहलाती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं।